Okay. So we had done how many chapters? Can anyone tell me? First one, किसी को याद है? We did introduction of direct tax, then residential status, income exempt from tax. before that scope of total income, Total income. Yes, scope of total. exempt from tax. At least we had done 15 to 16 exemptions. Okay, and that is very important. And next one, section 14 says heads of income, punch. Okay, so 5 heads of income. There are 5 heads of income. Number one is Income from salary. Income from salary. income from salary. Second one, याद है कि ना सभी को? Income from house property. Yes, house property. Third one, Income from business profession. business and profession. Fourth, Capital gain. okay, income from capital gain. And last one, your favorite one, Also, income from other. Other source. Yes. So in 5 heads of income, we did first one, income from salary. So today we are going to start the second heads of income, which is income from house property. Income from house property. Okay, sir. Income from house property. Section 22 to 27. Section 22 to 27. But lekin, kintu, parantu, bandhu, before going to start, I would like to tell you one Doha. Story. doha. Are you ready? Sir, story. आज स्टोरी, अच्छा स्टोरी मैं कल सुनाता हूँ, ठीक है? आज दोहा ले लेते हैं, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट दोहा है जो आजकल के यूथ में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वो चीज, तो उस चीज के बेसिस पे ही मैं आज का जो ये दोहा है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो स्टोरी मैं कल सुनाता हूँ, एकदम बढ़िया वाली स्टोरी लेके आऊंगा, 1 मिनट वाली, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, सो आर यू रेडी टू लिसन? कपलेट, टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let's start. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. Again I am repeating. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. That means Kabir tells his mind to slow down. Kabir tells his mind to slow down because everything in life happens slowly in its own time. Yes or no? Kabir tells his mind to slow down because everything in life happens slowly in its own time. The fruit, फल पता ना आपको? The fruit only comes when the season comes. So will the fruit of life come in its own time? जिसे हम बोलते हैं ना कि have patience, like that. सब्र का फल मीठा होता. मीठा होता है. होता है. सब्र का फल मीठा होता है. तो इसके ऊपर ही कबीर दास जी ने दोहा कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. मीन्स हैव पेशेंस, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल में करो, धीरे धीरे सब कुछ होगा. भले ही गार्डनर, ठीक है, भले ही गार्डनर जो होता है ना, माली जिसको बोलते हैं गार्डनर, अगर वो प्लांट्स को 100 टाइम्स ही वाटर क्यों ना देवे, ठीक है, प्लांट्स को 100 टाइम्स वाटर क्यों ना दे, लेकिन क्या फ्रूट आएगा? नहीं. वो कब आएगा? उसके स्पेसिफिक टाइम, जब उसका सीजन होगा तो ही उसका फ्रूट आएगा. That's why कबीर says धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. माली सींचे 100 घड़ा, मतलब 100 घड़ा पानी डालता है, बट ऋतु आए, ऋतु मीन्स सीजन,
ऋतु आए फल होए. I think all of you clear this, understand this, and add this in your lifestyle also. How's it? Was good, sir. Okay. Very nice, very nice. So let's start our today's topic, which is income from house property. फर्स्ट हेड्स में हमने क्या सीखा? इनकम फ्रॉम सैलरी मींस बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. बट इन दिस केस इनकम कहां से जनरेट होगा? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. लेट मी टेक एन एग्जांपल. मैं किसका नाम ले लूं? किसका नाम ले लूं मैं? फॉर एग्जांपल कोई दे दो अपना डायरेक्टली. Rohit. Rohit. So Mr. Rohit, we SYBBI, then TYBBI after graduation, then उसके बाद में PG, and then after that job लग गया MNC. ठीक है. So MNC में after 2-3 years job करने के बाद he earn money, he earn lots of money, then उसने लोन पे घर ले लिया. ठीक है. then शादी हो गई, वाइफ आ गई. ठीक है. फैमिली इंक्रीज होने लगी, बढ़ने लगी. ठीक है. तो रहने के लिए जगह नहीं हुई, तो उसने बोला कि एक और घर लेते हैं. ठीक है. 2 घर ले लिए. फिर वो जो पहले वाला घर था उसको बना के और थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया. अब एक घर उसमें ही हो गए. सारे जो सेकंड वाले घर में रह रहे थे वो फर्स्ट वाले रूम में आ गए. ठीक है. फर्स्ट हाउस में आ गए. अब वो सेकंड वाला हाउस क्या हो गया? वेकेंट हो. वेकेंट मींस खाली हो. तो अब वो ऐसे ही पड़ा है. सो रोहित थिंक कि अरे यार हम लोग तो इसमें रह रहे हैं, वो वाला रूम तो वेकेंट पड़ा है, तो हम क्या करते हैं? उसको लेट आउट कर देते हैं. ठीक है. रेंट पे दे देते हैं. तो उससे क्या होगा? थोड़ा सा इनकम होगा और मेरा लोन रीपे करने में भी थोड़ा सा हेल्पफुल होगा. बिकॉज लोन बहुत ज्यादा है ना आज के टाइम में. अगर आप हाउस लोन लेने जाओगे, ठीक है, सो हाउस लोन का रेट क्या चल रहा है? आई थिंक 11 to 12%. Am I right? किसी को अगर ये फील्ड में नॉलेज होगा तो आप तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से हैं. Sir, but coronavirus season loans are interest rates are decreases. अभी 8.5 है प्रेजेंट. अच्छा Yes, sir. प्रेजेंट 8.5 is 7 है. 7. ओके. ठीक है. तो अभी देखो कोरोना है, दैट्स व्हाई लोग ने डिक्रीज कर दिया है. नहीं तो नॉर्मली क्या होता है? 11 to 12% होता है. बट अगर इफ यू आर अ बैंक एम्प्लॉय, ठीक है, अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हो तो आपको हाउस लोन कितने रेट पे मिलता है? यू नो 2%. सर क्या बात कर रहे हो? तो सर हम लोग बैंक एम्प्लॉय बन के जाए क्या? नहीं बाबा. लाइफ में सब कुछ बन जाना, एमएनसी में जॉब कर लेना, लेकिन बैंक का जॉब नहीं करना. बिकॉज एंट्री टाइम इज फिक्स्ड, एग्जिट टाइम फिक्स नहीं होता है. बिकॉज मेरे कुछ दोस्त हैं जो उनको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, बट इतना वो लोग को रगड़ाते हैं ना, इतना वो लोग को मतलब लाइक से ये बोलते हैं ना, एक क्या, तो मुझे एक वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा है. मोनोटोनस वर्क. यस, मोनोटोनस. मतलब इतना काम कराते हैं 9 o'clock से लेके. एक्चुअली बैंक का जॉब क्या होता है? 9 to 6. बट उनको 10 o'clock 11 o'clock तक बिठा के रखते हैं. एंट्री टाइम इज फिक्स, एग्जिट फिक्स नहीं है. सो कुछ भी कर लेना, ठीक है, लेकिन नॉर्मली बैंक में मत जाना. बोलोगे सर हमने तो बीबीआई लिया है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. बीबीआई में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है. ओके, सो लेट्स कम टू अवर टॉपिक. सो हाउस प्रॉपर्टी, उसने रोहित ने क्या किया? अपना एक हाउस रेंट पे दे दिया. ठीक है. तो अभी रेंट पे दे दिया तो उससे इनकम आ रहे, यस और नो? ठीक है. और उससे अपना लोन भी रीपे कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ क्या है एक्सप्लेन करने का कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यहाँ पे जो इनकम, अभी देखो रोहित जो है वो जॉब भी कर रहा था एमएनसी में, लेकिन वो जो एमएनसी से इनकम जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम, यस, इनकम फ्रॉम सैलरी. एंड जो अभी जो सेकेंड हाउस, एक हाउस में तो खुद रह रहा है, दूसरा हाउस क्या किया उसने? रेंट पे दे दिया. तो उससे जो रेंट रिसीव्ड होगा दैट विल आल्सो कंसीडर्ड एज एन इनकम. सो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी. House property. अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी. ओके, दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो रेंट रिसीव्ड व्हिच इज लेट आउट टू समवन इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. जो आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव्ड हो रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एंड बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है. ठीक है. सैलरी में तो कैसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ इनकम है, बेसिक, डीए,
ex gratia, overtime, bonus, then allowances, perquisite, after retirement benefit, there are lots of income. लेकिन यहाँ पे जो इनकम होगा, इनकम सोर्स इज वन एंड ओनली वन, दैट इज रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड से ही आपका क्या होगा, इनकम जनरेट होगा. दैट्स इट. क्लियर है? ठीक है. देन उसके बाद अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको आगे एक्सप्लेन करने के बजाय एग्जांपल में ही बता दिया. रोहित हैव 2 हाउसेस, है ना. एक हाउस में वो खुद रह रहा है एंड दूसरा हाउस उसने लेट आउट किया. सो सिमिलरली यहाँ पे भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, there are 2 types of house property. There are 2 types of house property. Number 1 is LOP and second one is SOP. ठीक है? LOP and SOP. Can anyone tell me the full form of these two? First one, LOP का full form पता है किसी को? Let out property. Yes. शायद. Yes, very good. Right answer. Let out property. And what about SOP? Sold out property. Sole operating property. Yes. Sold out property. Yes, absolutely wrong answer. Sole operating property sir, मतलब खुद यूज कर रहे हैं अपन. Right है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा because wrong है. अरे Okay. कैसे कर रहा था बस. Let me tell you. चलेगा, it's okay. So SOP is self-occupied property. Okay. So there are 2 types of house property. Number 1 is LOP, let out property, and second one is SOP, self-occupied property. Okay. अच्छा, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रोहित का. रोहित के पास भी 2 हाउस था. कैन एनीवन टेल मी कि उसमें SOP और LOP कौन सा वाला था? SOP जो खुद यूज कर रहा था, LOP जो रेंट पे दिया था. Yes, absolutely right answer. ठीक है. सो जो LOP है, लेट आउट प्रॉपर्टी, दैट मींस उसको रेंट पे दिया है. ठीक है. एंड SOP खुद के लिए फॉर सेल्फ यूजिंग. ठीक है. अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताओ कि रेंट किस कौन से केस में रिसीव्ड होगा, SOP में या LOP में? LOP. ऑफ कोर्स LOP में, है ना. लेट आउट किसी को भाड़े पे दिया, ठीक है, किसी टेनेंट को, तो ही तो रेंट आएगा ना. SOP में थोड़ी ना, हाँ अभी मंथली हो गया, खुद को ही भाड़ा देने का, यहाँ से निकल के ये भाड़ा 1 महीने का, या फिर यहाँ से निकल के 1 महीने का भाड़ा. ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना. सो SOP के केस में वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो खुद रह रहा है उस घर में. एंड LOP केस में क्या होगा, उसने किसी अदर पर्सन को, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हो और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हो, उस पर्पस के लिए लेट आउट किया है. दैट हाउस प्रॉपर्टी विल बी नोन एज लेट आउट प्रॉपर्टी. अच्छा, एक मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल रोहित के पास 2 हाउस थे, एक में वो खुद रह रहा है फॉर सेल्फ एंड सेकेंड वन उसने लेट आउट किया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2-3 इयर्स उसके पास और अर्निंग्स हो गई एंड देन उसने एक और हाउस परचेज कर लिया, एक और हाउस बाय कर लिया. ठीक है. लेकिन ये वाला थर्ड वाला हाउस जो है उसने लेट आउट नहीं करा है. ठीक है. थर्ड वाला हाउस लेट आउट नहीं करा है. ठीक है. तो ऐसे केस में अगर उसने लेट आउट नहीं करा है, देन ऑल्सो गवर्नमेंट सेज कि अगर आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ये 3 हाउस प्रॉपर्टी में एक अपने लिए सिलेक्ट करके रखो, एक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड अज्यूम करो. ठीक है. उस पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, बट रिमेनिंग 2 जो है वो आपको लेट आउट करना होगा एंड दैट इज कंपल्सरी. आपको क्या करना होगा, लेट आउट करना होगा. लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि रोहित ने 3 हाउस में से एक में तो खुद रह रहा है, वो 2 हाउस प्रॉपर्टी बचे. ठीक है. और 2 में से एक क्या किया है, उसने लेट आउट किया है और सेकंड वाला उसको वेकेंट रखा है. सो गवर्नमेंट सेज कि जो आपका सेकंड हाउस प्रॉपर्टी है जो वेकेंट है, हम उस पे भी टैक्स चार्ज करेंगे एंड दैट हाउस प्रॉपर्टी विल बी नोन एज, उसे भी हम LOP मानेंगे, बट आगे एक वर्ड ऐड कर दिया है D. दैट मींस डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी. मींस भले ही आपने उसको लेट आउट नहीं करा, बट ऑल्सो हम उसको क्या मानेंगे, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी. सो मार्केट में जो रेट चालू है, ठीक है,
जो वैल्यू है पर मंथ का रेंट का, हम उसके बेसिस पे आपको टैक्स चार्ज करेंगे ऑन थर्ड, जो तीसरा हाउस प्रॉपर्टी था उसके ऊपर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट है यहाँ तक? टेल मी। Yes, ma'am. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे अभी तक मैंने क्या बताया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एनओपी एंड एसओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मींस किसी को रेंट पे दिया है, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड मींस ओन पर्पस के लिए, खुद के रेसिडेंस के लिए यूज करा। बट अगर इफ ही और शी हैज अनदर हाउस प्रॉपर्टी, तो उसे हम, भले ही उसने उसको लेट आउट किया है तो दैट्स गुड, अच्छी बात है, आप इनकम अर्न करो एंड हमें टैक्स दो, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। लेकिन अगर आपने उसको रेंट पे नहीं दिया है, देन ओनली वी ऑल्सो अज्यूम वो हाउस प्रॉपर्टी को क्या, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड मींस अज्यूम्ड, हम अज्यूम करेंगे वो भी क्या है, लेट आउट है, एंड उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज करना होगा। तो डर के मारे रोहित क्या करेगा? ऑफ कोर्स ही विल लेट आउट दैट प्रॉपर्टी आल्सो, एंड उससे भी इनकम अर्निंग होगा, एंड देन उसके बाद में उस पे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है सभी को? टेल मी फर्स्ट, एनी डाउट टू एनीवन? सर एक क्वेश्चन पूछना है। No. यस यस। सर अभी अगर मेरे पास दो घर है, तो एक के अंदर मैं रह रहा हूँ और एक मतलब लेफ्ट आउट रहेगा, ठीक है? तो अगर वो भी मैंने रेंट पे नहीं दिया तो वो किस में गिना जाएगा? डीएलओपी? वो भी किसमें गिना जाएगा? डीम्ड एलओपी। ओके। ठीक है, अगर आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक में आप खुद रह रहे हो, तो दूसरा डीएलओपी माना जाएगा। यस, नेक्स्ट वन। बोलो बोलो, डोंट फील शाय। अभी यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है, ठीक है? क्लासरूम में तो कैसे थोड़ा सा ये होता है, अरे मैंने पूछा, एवरीवन विल थिंक कि अरे इसको ये नहीं आता है, इतनी छोटी सी सिंपल सी चीज। सो डोंट फील शाय, डोंट हेजिटेट, ठीक है? ऐसा मत सोचो। टेल मी। नहीं है ठीक है। ओके, कुछ डाउट? ओके, सो इंट्रोडक्शन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ये दोनों का एक छोटा सा फॉर्मेट है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट था, सो वैसे ही गवर्नमेंट ने हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी एक फॉर्मेट डिसाइड किया है। सो लेट्स सी दिस, ठीक है? सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट लेट आउट प्रॉपर्टी, देन उसके बाद में एसओपी। So second one, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? एंड अगेन यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए क्या लिखना है आपको? सेम, नेम ऑफ द एसएससी, प्रीवियस ईयर, assessment year, legal status and residential status. Then after that, computation of income from house property. यहाँ पे मैं LOP का फॉर्मेट बता रहा हूँ, that's why मैंने आगे LOP लिख दिया। IFHP, that means income from house property. The format is Sir, वो name of the SSC and everything will be same. same. Of income All from 5 points are same. Okay, sir. First we have to calculate gross annual value, but before that we will write here रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मेट पहले लिख देता हूँ, देन उसके बाद में विल एक्सप्लेन। ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू
आप लोग तो फॉर्मेट देखते रहो, ठीक है? See, this is the format. Computation of income from house property, let out property, ठीक है? LOP, ठीक है? So first we have to calculate reasonable letting value. First we have to calculate reasonable letting value. Reasonable letting value कैसे मिलेगा? Comparing these two, fair rent and municipal value, or we can also say rateable value. Okay, municipal valuation is also known as rateable value. ठीक है? Sir, what is fair rent? Fair rent क्या होता है? Fair rent means जो मार्केट में वैल्यू है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे 1 BHK अगर आप लेने जाओगे, अगर पॉश एरिया में लेने जाओगे, सो 1 BHK कितने तक आपको आएगा रेंट? फॉर एग्जांपल 25K और 22K, ये रेंज में है कि नहीं? ठीक है, तो दैट अमाउंट विल बी नोन एज फेयर रेंट. मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी का नॉर्मली जनरल सेंस में उसका रेंट क्या है मार्केट में, ठीक है? तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, एंड दैट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. ओके, आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन हो. नेक्स्ट वन इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और वी कैन से रेटेबल वैल्यू. सो म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से, बीएमसी के हिसाब से उस हाउस प्रॉपर्टी का रेंट क्या होना चाहिए, ठीक है? वो अमाउंट. सो वो अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, म्युनिसिपल वैल्यू इज आल्सो नोन एज रेटेबल वैल्यू, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन में कभी चेंज करके भी आता है. म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया होगा, रेटेबल वैल्यू विल बी गिवन. सो अरे घूमते फिरे, अरे सर वेयर इज म्युनिसिपल वैल्यू, नहीं दिया है डैश, सो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? So first we have to calculate reasonable letting value. उसमें दो अमाउंट you have to take, fair rent and municipal value, ठीक है? ये दो अमाउंट गिवन होगा, दोनों में से जो हायर होगा, whichever is higher, that amount will be considered as reasonable letting value. ठीक है? नहीं समझा? सब वो क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 30% ऑफ? नहीं, उधर मत जाओ, अभी मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर, ठीक है? फिलहाल यहीं पे रहो, ठीक है? फर्स्ट वन इज रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. हाउ डू वी फाइंड आउट रीजनेबल लेटिंग वैल्यू? बाय कंपेयरिंग टू अमाउंट. नंबर वन इज फेयर रेंट एंड सेकंड वन इज म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिच इज आल्सो नोन एज रेटेबल वैल्यू. सो ये दो वैल्यू यहाँ पे लिखना है, दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी नोन एज आवर रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. यहां तक किसी को डाउट है? Tell me. No doubts? Yes, no? जल्दी बोलो फटाफट. At least. No, sir. Okay. So reasonable letting value, fair rent, and municipal value, rateable value. Then after that we have to calculate gross annual value. उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे मिलेगा? फर्स्ट वन इज रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. सर ये तो वापस से ये वाला आ गया. यस, मींस आपने फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. कैसे मिलेगा? ये दोनों को कंपेयर करके, ठीक है? तो ये दोनों में से जो हाईएस्ट होगा, आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नीचे फिर से लिखोगे रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, एंड दोनों में से जो हायर होगा वो अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है? एंड उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एक्चुअल रेंट रिसीव. ये तो पता है आपको, एक्चुअल रेंट रिसीव मतलब एक्चुअली में हमने कितना रिसीव किया है फ्रॉम टेनेंट, ठीक है? जो भाड़ोतरी है उससे हमने एक्चुअली में पर मंथ कितना रिसीव किया है, ठीक है? सो मल्टीप्लाई बाय एनुअली हो जाएगा, जितने महीने के लिए दिया होगा, सो वो अमाउंट. एंड नाउ जीएवी कैसे मिलेगा? अगेन whichever is higher means reasonable letting value. ये कहां से आया? ये दोनों का हायर. एंड एक्चुअल रेंट रिसीव, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, दैट मींस फॉर एग्जांपल 20,000 पर मंथ, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है? सो ये आ गया. अगेन ये दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है? सो यहां पे मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है? एंड नाउ वी हैव ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये वाला. ये दोनों में से जो हायर होगा दैट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है? टेल मी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू.
Any doubt? No. No, sir. Okay. So I done. यहाँ तक हो गया. Reasonable letting value, दो amount, fair rent, municipal value, whichever is higher, we will take it Not as. getting parents can even that 0.1% चाहिए fairer, taller, thinner, better hair, better. But only one thing that you lack is your you underestimate. I don't. Ritika, please mute yourself. How do I get myself? Full time मैंने भी feel है कि मुझको गंदे. Ritika. Then sometimes like I look at my good pictures and then I get my confidence. पोस्ट म्यूट करो Sweetie, इसको। mute her. अरे कुछ हाय रोहित. अरे Okay. Thank you, sweetie. Okay. So यहाँ तक clear है. Reasonable letting value, fair rent, municipal valuation, whichever is higher. Reasonable letting value. Then GEV कैसे मिलेगा? Reasonable letting value amount, actual rent received, whichever is higher, we will get gross annual value. So वो हमने यहाँ पर लिखा. ठीक है. Then after that, municipal tax. Municipal tax is also given in means अगर मैं आपको short में बोलूँ, everything will be given in the problem. Just आपको format follow करना है. जो format में दिया है सिर्फ उतना ही consider करना है. Extra ignore. ठीक है. बाकी का कचरा information ignore करना है. So municipal tax is also given in the problem. So यहाँ से minus कर देंगे. Then we will get net annual value. ठीक है. Gross annual value minus municipal tax we will get net annual value. ठीक है. That means अगर मैं इसको short में simplify करूं, so देखो इसका अगर short क्या होगा, abbreviation GAV और इसका NAV. In short, GAV minus municipal tax we will get now. Okay, GAV minus municipal tax we will get now. ऐसा करके आप ध्यान में रख सकते हो. Then उसके बाद yes, जैसे सैलरी में आपको डिडक्शन मिला था अंडर सेक्शन सैलरी में डिडक्शन मिला था अंडर सेक्शन क्या था सैलरी का 16. यस, यहाँ पे इन हाउस प्रॉपर्टी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24. ठीक है. वहां पे 3 डिडक्शन था, यहाँ पे ओनली 2 डिडक्शन. नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ NAV. 30% ऑफ NAV फिक्स्ड है. ठीक है, सबके लिए. सो 30% ऑफ NAV दैट मींस ये जो नेट एनुअल वैल्यू आपको आया है अमाउंट ये वाला, उसके ऊपर कितना परसेंट 30%, एंड वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल 1 लाख अगर यहाँ पे है सो 30% 30,000. ठीक है. देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये वाला अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट टोटल हियर. देन उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी LOP, let out property. That's it. So this is the format of let out property. ठीक है. Clear to everyone? किसी को डाउट आया कुछ? सब ओके है. स्टैंडर्ड डिडक्शन Sir. के बाद लिखा हो तो ब्रैकेट में 30% of NAV. Now. NAV. Yes. Next one. और कुछ पूछना है किसी को? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे कोई? No doubt. Shall we move? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So यहाँ पे अभी तो आप सोच रहे हो कि सर फॉर्मेट इज वेरी सिंपल. ठीक है. बट यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है. अभी जो मैं स्टार मार्क करने वाला हूँ उसमें ठीक है. 2 चीज को मैंने स्टार मार्क किया है एंड यहाँ पे 3 चीज को सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट. पहले इसकी बात करते हैं. लैंग्वेज एक्चुअल रेंट रिसीव पूरा फॉर्मेट अभी तो सबको क्लियर हो गया होगा. रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन व्हिचएवर इज हायर, रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. GAV कैसे मिलेगा? रीजनेबल लेटिंग वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट रिसीव व्हिचएवर इज हायर, GAV. Then GAV minus municipal tax, GAV minus municipal tax we will get now. Then after that standard deduction, deduction under section 24, standard deduction 30% of now and interest on borrowed fund. ठीक है. And amount आ जाएगा LOP. ठीक है. But इसमें कुछ terms and condition है. Let's talk about first one. Actual rent received. For example, actual rent received में जैसे कि for example 20,000 per month rent is 20,000 per month.
सो वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, एनुअल इनकम कैलकुलेट करना है, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अमाउंट आ जाएगा. बट व्हाट इफ अगर हाउस इज वेकेंट फॉर 2 months, हाउस इज वेकेंट फॉर 2 months, देन मल्टीप्लाई किससे होगा? 10. 10. एब्सोल्युटली राइट, मल्टीप्लाई बाय 10. सर तो हमें कैसे पता चलेगा रूम इज वेकेंट, हाउस इज वेकेंट और नॉट? क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये आपको सर्च करना है कि कहाँ पे दिया है. स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है. द हाउस इज वेकेंट फॉर 1 month और से 3 months ऐसा करके, तो वो आपको डिडक्ट कर देना है मंथ एंड बाकी से मल्टीप्लाई कर, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 20,000 पर मंथ. अगर मान लो रूम वेकेंट नहीं है, ठीक है, सपोज कि रूम वेकेंट नहीं है, बट जो टेनेंट है उसने हमें रेंट पे नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल 12 months में से 10 months का रेंट दिया एंड 2 months का रेंट ही पे नहीं किया. सो दैट रेंट जो अनरिकवर्ड रेंट है, ठीक है, दैट विल बी नोन एज अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट, ठीक है. सो ये तो पैसा आया ही नहीं है ना. सो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट इसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ देती है. गवर्नमेंट सेज अगर आपका वेकेंट है रूम, तो उसके लिए आप वहां से माइनस कर सकते हो, जैसे कि 12 months के बजाय हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 10 months, ठीक है. इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट मींस टेनेंट ने ही आपको पे नहीं किया, आपका बैड डेट्स करा दिया, ठीक है, पैसे डूब गए, ठीक है. तो ये अमाउंट भी आप क्या कर सकते हो? एक्चुअल रेंट रिसीव से माइनस कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर 12 months है, उसमें से अगर मान लो 1 month का रेंट इज अनरियलाइज्ड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 12 months का आपने मल्टीप्लाई किया, 12 months का रेंट लिया एंड देन वहां से माइनस क्या हो जाएगा? अनरियलाइज्ड रेंट, एंड दैट नेट अमाउंट विल बी रिटन ओवर हियर. आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव में 2 पॉइंट आपको क्लियर कराया है. 2 पॉइंट कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ वेकेंट, अगर हाउस इज वेकेंट तो वो मंथ आपको कंसिडर नहीं करना है. एंड सेकेंड वन अनरियलाइज्ड रेंट, अगर टेनेंट ने आपको पेमेंट नहीं किया है, वो अमाउंट भी आप क्या करोगे? यहां से माइनस करने के बाद नेट अमाउंट यहाँ पे लिखोगे. इज दैट क्लियर? ये 2 पॉइंट क्लियर है सभी को? टेल मी. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. डन. अच्छा, इसमें मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है. यहां से मैं अमाउंट हटा देता हूँ, मतलब एक्स एक्स हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फेयर रेंट इज 80,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 90,000. What will be the reasonable letting value? चलो 90,000. 90,000. okay, very good. क्या बात है, 90,000 ये वाला अमाउंट लेंगे because whichever is higher. Next, actual rent received is 10,000 per month, ठीक है. चलो 10K multiply by 12 पूरा full year का, so amount 120. So what is GAV? Gross annual value क्या होगा? 120. 120. Yes, 120 will be the GAV. Very good. ठीक है. So this is first case and that one, that is easy. तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ. Now 85. 85,000. 85. then उसके बाद में यहाँ पे 11 months multiply by 10. 1,11,000. 1,10,000. ठीक है. GAV मींस GAV क्या होगा? 110. 110. 110 will be GAV. ठीक है. इसको मैं 8 कर देता हूं. Then now 85,000. 85,000. 85,000. ठीक है. ओके, चलो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को.
Now what is reasonable letting value? 1,20,000. 120. Okay. Next, 10,000 multiply by 11 months. 1,10,000. 110. 1 lakh What is GAV? 1,20,000. 120 will be GAV. ठीक है? Clear? Okay. Now 12,000 per month is the rent. Multiply by 11. That means इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 1,32,000. Okay. So अभी GAV क्या होगा? 132 होगा. 132. 132. देखो पॉइंट में इजी विजी वाला फिर उसको कनेक्ट करूंगा डायरेक्टली, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके, सो ध्यान रखो. देन उसके बाद में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये ले लिया 11,000 मल्टीप्लाई बाय 11. 11 नहीं 10 ले लेता हूँ. चलो 10. सो अमाउंट इज 110. देन ऑल्सो GAV इज 120. ठीक है, GAV इज 120. अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 10 मंथ से मल्टीप्लाई किया है. दैट मीन्स क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 मंथ क्या हो गया है, 2 मंथ के लिए वेकेंट है रूम. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2 मंथ्स के लिए हाउस वाज वेकेंट, और 2 मंथ्स हाउस वाज वेकेंट. ठीक है, सो ऐसे केस में जैसे कि ये वाला केस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसको मैं वापस से इलैबोरेट कर रहा हूँ. सो 120 एंड 110 ऐसे केस में भी हम किसको लेंगे GAV? बताओ जरा किसको लेंगे GAV? एक बार और टेल मी. 120. 120 को. Yes, absolutely wrong answer. Our GAV will be 110. Sir, कैसे? How? यहाँ पे तो आपने बोला है GAV whichever is higher, तो ये 120 एंड ये 110 है, तो हमने तो हायर वाला 120 ही लेना है ना. बट मैंने क्या बोला कि अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव ये जो 110 आया है वो क्या है, लोअर है. किससे? फ्रॉम रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. बट द कंडीशन इज, वहां पे उसका रीजन क्या है लोअर आने का? ओनली वेकेंसी, हाउस की वेकेंसी. अगर मुझे ये बताओ 2 मंथ्स रूम वाज वेकेंट, 2 महीने के लिए घर खाली था, लेकिन अगर वो घर खाली नहीं होता, वेकेंट नहीं होता, तो क्या उसका भी रेंट आया होता या नहीं? चलिए, उसका भी रेंट आया होता ना. हाँ. Yes, sir. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, और देखो दूसरा कोई भी रीजन नहीं है, गवर्नमेंट सेज कि सिर्फ ड्यू टू वेकेंसी अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव कम आ रहा है, ठीक है, और ये ज्यादा है, देन ऑल्सो वी विल टेक एक्चुअल रेंट रिसीव एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 110, तो यहाँ पे मैं GAV किसको लूंगा? 110 को ही लूंगा. क्यों? बिकॉज अगर मैं इधर 12 से मल्टीप्लाई करूं सो कितना हो जाएगा? 1,32,000. अगर वेकेंट नहीं होता तो ज्यादा हो गया ना, इससे देखो, इससे ज्यादा हो गया ना. ठीक है, 120 था, ये 132 हो गया. तो अगर वैकेंसी नहीं होती रूम की तो हम इसको ही लेंगे. आई बात समझ में? हाँ सर. ठीक है. सो अगर आपको वैकेंसी दिया है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल ड्यू टू वैकेंसी की वजह से ये अमाउंट कम है, लेकिन अगर मैं वेकेंट नहीं करता हूं, अगर वो 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला अमाउंट ज्यादा हो जाता है ना. सो इसको ही क्या लेना है? एक्चुअल रेंट रिसीव विल बी टेकन एज GAV. सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ अगर वो वैकेंसी ऐड करने के बाद भी ये कम है, इससे वैकेंसी ऐड करने के बाद भी एक्चुअल रेंट रिसीव इज लोअर, देन तब क्या करेंगे? तब GAV लेंगे. यस यस, वेरी गुड. तब हम रीजनेबल को ही GAV लेंगे. माय पॉइंट इज कि ये 110 अमाउंट कम है 120 से, लेकिन कम क्यों आ रहा है? ड्यू टू वेकेंसी. ठीक है, ड्यू टू वेकेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. सिर्फ वेकेंसी की वजह से अगर ये कम है तो आप इसी को GAV मानोगे. ठीक है, नो अदर रीजन. बट अगर वेकेंसी ऐड करने के बाद भी अगर आपका ये कम ही आ रहा है इससे, तब तो GAV क्या होगा? रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. नहीं समझा? यस सर.
सर मतलब वैकेंसी के बाद भी वैल्यू ऐसे ही आ रहा है तो लेंगे हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू लेंगे। यस, हाँ ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? टेल मी। यस सर। ओके, सो वैकेंसी कैसे पता चलेगा वो क्वेश्चन क्या में होता है गिवन उसका होगा, मतलब? क्वेश्चन में Given गिवन होगा। होगा that house is vacant for 1 month और we can say house is vacant for 3 months, ऐसा करके क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट वन। सो ये फर्स्ट स्टार समझ में आ गया आपको। सेकंड स्टार इज म्युनिसिपल टैक्स। ओके, सो यहाँ Sir, यस यस अटेंडेंस। can I take यस please? श्योर श्योर। Please switch on your videos. Guys, switch on your videos, please. Shaurya, switch on your video. Shaurya, can you please switch on your video? Shaurya, please switch on your video. दिखा दो भाई चेहरा, क्यों इतना शर्मा रहे हो? Sir, it's done. Thank you. Welcome. Okay, so without wasting time, I think we have only 6 minutes, ठीक है? But कोई नहीं, 2 मिनट खींच ली। Okay, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, ये आपको ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, म्युनिसिपल टैक्स, इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी। ओनली 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, पेड एंड पेड बाय ओनर। पेड, फर्स्ट पॉइंट इज पेड एंड सेकेंड पॉइंट पेड बाय ओनर, दैट्स इट। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दैट मीन्स म्युनिसिपल टैक्स शुड बी पेड। म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। देन ओनली वी विल माइनस फ्रॉम हियर। व्हाट इफ इट इज आउटस्टैंडिंग? देन माइनस होगा? टेल मी, माइनस होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ड्यू, ठीक है, तो नहीं माइनस होगा। ओनली इन केस ऑफ पेड वी विल डिडक्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी पेड बाय द ओनर। ठीक है, टेनेंट पे नहीं करना चाहिए, पेड कौन करना चाहिए? ओनर पे करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहित का लेते, ठीक है, रोहित के पास 2-3 हाउस प्रॉपर्टी थी ना, अमीर आदमी है वो, ठीक है, बड़े लोग। सो इफ उसने अपना हाउस प्रॉपर्टी क्या लेट आउट किया, एंड वो हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट करा है उसका म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय रोहित, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय रोहित माइनस होगा या नहीं? होगा। होगा। यस, माइनस होगा। सेकेंड केस, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड। थर्ड केस, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। थर्ड केस, फर्स्ट केस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, होगा। सेकेंड केस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, नहीं होगा। थर्ड केस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर बट रिम्बर्स फ्रॉम टेनेंट। सोचो सोचो सोचो। होगा सर। यस प्रगति, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। नहीं होगा। मैंने क्या बोला? थर्ड केस बट पे तो रोहित ही कर रहा है ना सर। पेड बाय रोहित बट इट इज रिम्बर्स्ड फ्रॉम टेनेंट, सो इनडायरेक्टली हु पेड? टेनेंट। टेनेंट। तो हो गया ना सेकेंड वाला। मैंने बोला ना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर अभी? यस सर। ओके, सो फर्स्ट वन पेड बाय ओनर माइनस होगा। थर्ड, सेकेंड वन पेड बाय टेनेंट माइनस नहीं होगा। थर्ड वन पेड बाय ओनर बट रिम्बर्स्ड फ्रॉम टेनेंट, नहीं होगा। फोर्थ केस पेड बाय टेनेंट बट रिम्बर्स्ड फ्रॉम ओनर, होगा। होगा। वाह, मैं सोच रहा था कंफ्यूज हो जाएंगे बट नहीं हुए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो फोर्थ पॉइंट
होगा माइनस बिकॉज इनडायरेक्टली ओनर पेड. ठीक है. सो एंड लास्ट वन, फिफ्थ पॉइंट ये वाला ध्यान से. फिफ्थ पॉइंट इज 50% पेड बाय टेनेंट एंड 50% पेड बाय ओनर. देन नहीं होगा. नहीं होगा. रोहित सेज नहीं होगा. सर 50% जो maybe ओनर ने पे किया है वो 50% होगा. यस, जो 50% ओनर ने पे करा है वो हम माइनस करेंगे. दैट्स इट. सिर्फ ओनली 50% वी विल डिडक्ट फ्रॉम हियर. दैट्स सो. ये म्युनिसिपल टैक्स के 5 कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं. पेड होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी पेड, नॉट आउटस्टैंडिंग. सेकंड वन, पेड बाय ओनर माइनस, पेड बाय टेनेंट नो माइनस, पेड बाय ओनर बट reimbursed no minus, paid by tenant but reimbursed from owner yes. 50-50 ओनर का 50%. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. म्युनिसिपल टैक्स, टेल मी एनी डाउट to anyone? No sir. No, sir. Okay. And last one, interest on borrowed fund. ठीक है. यहाँ पे borrowed fund means बैंक से लोन लिया. ठीक है. या फिर any loan taken from any financial institutions. ठीक है, वहां से लोन लिया. ठीक है. लेकिन the purpose of loan should be related to house property. ओके. ऐसा नहीं कि मतलब अपने पर्सनल लोन के लिए क्या बोलते हैं, पर्सनल लोन के लिए हमने लोन लिया है एंड देन उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. आपने यहाँ बोरोड फंड किस पर्पस के लिए होना चाहिए? ओनली टू दी रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, acquisition of house property, construction of house property, reconstruction of house property, renovation of house property, means anything related to house property. अगर आपने उस पर्पस के लिए बैंक से लोन लिया है और लोन taken from any financial institution, then only deduction is allowed under section 24. नहीं समझा सर? ओके, लेट मी रिपीट. ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ. यहाँ पे फाइनेंशियल जो बोरोड फंड है वो लोन, यहाँ पे देखो लोन हम लेते हैं तो उस पे इंटरेस्ट पे करना होता है. ठीक है. यहाँ पे इंटरेस्ट का है, प्रिंसिपल नहीं है. सो वो जो लोन हमने लिया है वो लोन कौन से पर्पस के लिए होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. चाहे वो आप घर को रिपेयर कराने के लिए लोन ले रहे हो या घर को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, या जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर है, आपने सेकंड फ्लोर बनाने के लिए लोन लिया, मींस रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी नो, तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा. ठीक है. अगर रोहित ने फॉर एग्जांपल अपने भाई की शादी करने के लिए लोन लिया एंड उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे ले रहा है, मिलेगा उसको? नो सर. नहीं मिलेगा. ठीक है. रोहित, वेयर आर यू लाफिंग? यस सर. ठीक है. सो रोहित को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी. दैट्स इट. ठीक है. सो ये वाला पॉइंट क्लियर है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स ये क्या होना चाहिए? सिर्फ पेड होना चाहिए. बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, दिस इज पेड एंड आउटस्टैंडिंग, दोनों भी चलेगा. ठीक है. पेड होगा तो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग होगा तो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. बट इन केस ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ओनली पेड बेसिस, यहाँ पे ड्यू, आउटस्टैंडिंग और पेड दोनों भी माइनस होगा. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जस्ट इट विल टेक, yes. Time is also up and ma'am is also here. Just 30 seconds. Okay, sir. Okay. So मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ. Computation of income from house property, okay, but LOP, let out property. So first we will consider reasonable letting value, to value, fair rent and municipal value. Whichever is higher, it will be considered as reasonable letting value. Then after that, gross annual value. Gross annual value कैसे मिलेगा? By comparing these two, reasonable letting value जो ऊपर से हमने कंपेयर करके यहाँ लिखा, and second one actual rent received. Whichever is higher will be taken as GAV, gross annual value. Then GAV minus municipal tax. Municipal tax minus करने के बाद NAV, net annual value. Then after that deduction under section 24. Two deductions, standard deduction. Number one is 30% of NAV, and second one interest on borrowed fund. But borrowed fund only for the purpose of house property. Then we will get income from house property, let out property. ठीक है. Is that clear to everyone?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so time up. So we will continue in next lecture. Okay, so thanks for today. Bye bye. Take care. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.